لفظ المرا بنیادی طور پر قرآن پاک کے جو حروف مقطعات ہیں نا ان کا مجموعہ ہے، الف لام میم را، ان سب الفاظ کو ملا کے المرا بنایا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والد صاحب کو ہمیشہ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہمارے گھر سے 400 کے قریب لوگوں کے لیے لنگر تیار ہو کے ہر دن جایا کرتا تھا۔ یہ کام تقریباً 1995 سے جاری تھا۔ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ نیکی کا کام آپ کو کچھ پوشیدہ بھی رکھنا چاہیے اور کچھ دکھا کر بھی کرنا چاہیے، تاکہ پوشیدہ رکھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو، اور دکھا کے نیکی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ اور اپنا خیال رکھنے کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں پڑ جاتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کو پرنور کر دیتا ہے۔ اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ علی، اور اس وقت میں موجود ہوں المارا فاؤنڈیشن کا یہاں ایونٹ ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے المارا فاؤنڈیشن کی اونر۔ جیسے کہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بہترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور برا گھر وہ ہے جہاں پر یتیم بچوں کے ساتھ ناروا اور برا سلوک ہو۔ لیکن یہاں المارا فاؤنڈیشن کی جو اونر ہیں، انہوں نے یتیم بچوں کو سہارا دیا ہوا ہے، اور یتیم بچوں کا اس طرح کرتی ہے کہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ شاید ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور انہیں ہر سہولت جو ہے میسر کی ہوئی ہے جو شاید انہیں اپنے گھر میں بھی میسر نہ ہو۔ آج ہم ان سے بات کریں گے یہ ایونٹ کیوں آرگنائز کیا، اور ان کی ساری جو جدوجہد ہے اس کے حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رابعہ، کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح آپ نے آغاز کیا؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹل، فلاحی ہاسپٹل بناتے ہیں، کھانا وغیرہ دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا سوچا جس کا شاید کوئی بھی نہیں سوچتا، اور وہ برے صحبت میں چلے جاتے ہیں، برے لوگوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ نے ان چھوٹے بچوں کا سوچا، کس طرح سوچا؟ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والد صاحب کو ہمیشہ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہمارے گھر سے 400 کے قریب لوگوں کے لیے لنگر تیار ہو کے ہر دن جایا کرتا تھا۔ یہ کام تقریباً 1995 سے جاری تھا۔ 2009 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اور میں کیونکہ ان کی اکلوتی اولاد ہوں تو ان کی لیگیسی کو پھر میں نے آگے بڑھایا، اور یہ کام جو لنگر تقسیم کرنے کا تھا، ہر صبح ہمارے گھر سے 400 کے قریب لوگوں کے لیے لنگر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 40 کے قریب ایسے سفید پوش لوگ ہیں، سفید پوش فیملیز ہیں جن کو ہم لوگ منتھلی بیسس پہ مہینے کا راشن ان کے گھروں میں جا کر دے کے آتے ہیں، تاکہ ان کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ 30 کے قریب ایسی فیملیز ہیں جن کی مختلف ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے منتھلی اسٹائپنڈ کے تھرو۔ اور یہ سب کچھ تو وہ تھا جو بہت عرصے سے چل رہے تھے اور اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے تھے۔ اب مجھے یہ خیال آتا تھا اکثر کہ یہ سب کچھ کافی نہیں ہے، اور اسپیشلی جب میں چھوٹے بچوں کو دیکھتی تھی جو یتیم اور بے سہارا ہیں، تو ہمیشہ مجھے یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے استطاعت دے کہ میں ان بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، اور پھر یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی، اور لاسٹ ایئر پھر ہم لوگوں نے اس فاؤنڈیشن کو رجسٹر کرایا المرا کے نام سے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ المرا جو ہے بنیادی طور پر لفظ المرا بنیادی طور پر قرآن پاک کے جو حروف مقطعات ہیں نا ان کا مجموعہ ہے، الف لام میم را، ان سب الفاظ کو ملا کے المرا بنایا گیا ہے۔ اور جہاں پر بھی قرآن پاک میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہاں پر جو اس کی ایڈجسنٹ آیت ہے وہاں پہ نالجبلٹی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوئی ہے، اور ہم لوگ بھی یہاں پر قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق جو ہے نا سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے محبوب بندوں کے بارے میں کہ وہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔
इसी तरह से यतीमों के साथ हुस्न सलूक का ज़िक्र बार बार किया गया है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इन छोटे बच्चों को गोद लूँ और मैं इनकी परवरिश ऐसे तरीके से करूँ जैसे मैं अपने बच्चों की परवरिश करती हूँ। तो आप मुझे ये बताइएगा कि बच्चों को किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही है उस घर में? उसे हम यतीम खाना तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जिस तरह वहाँ पर बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जा रही है और जिस तरह का घर आपने माशाल्लाह वो बनाया है, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? बच्चे कैसा फ़ील करते हैं वहाँ पर? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जब हम काम शुरू करने लगे थे तो उस वक्त मैंने बहुत सारे ऑर्फनेज विज़िट किए और फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि मैं इसको रवायती यतीम खाना नहीं बनाऊँगी, बल्कि मैं इसको एक इतना खूबसूरत घर बनाऊँगी जैसा एक नॉर्मल अच्छे घर हुआ करते हैं, जहाँ पे माँ बाप का साया सर पर होता है और बच्चे वहाँ पे उनके ज़ेरे साया परवरिश पाते हैं और वहाँ पे उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का, खुशियों का, उनकी फीलिंग्स का ख्याल किया जाता है। तो इस तरीके से और मैंने इन बच्चों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है और मैं इनकी परवरिश बिल्कुल उसी तरीके से कर रही हूँ जैसे मैं अपने बच्चों की परवरिश करती हूँ। और इन बच्चों को वो तमाम सहूलियात दी जा रही हैं जो किसी भी खुशहाल घराने में बच्चों को दी जाती हैं, जिनके सर पर वालिदैन सलामत होते हैं। और इन बच्चों के लिए हमने एक बहुत अच्छे स्कूल का बंदोबस्त किया है। इसके अलावा कारी साहब आते हैं, दीनी तालीम पे भी बहुत तवज्जो दी जा रही है इनके। इसके अलावा हमने इनके लिए एक साइकोलॉजिस्ट का बंदोबस्त किया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये बच्चे, यतीमी का लफ्ज़ जो है ना, एक बहुत तकलीफ़देह लफ्ज़ है और ये बच्चे तो बहुत बचपन में इस तकलीफ़ से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे होते हैं। तो ये इतनी कम उम्र में इतने ट्रॉमा से गुज़रे होते हैं कि हमें लगा कि इनके लिए हमें एक साइकोलॉजिस्ट का अरेंज करना चाहिए जो कि रोज़ डेली बेसिस पे इनकी पर्सनैलिटी को असेस करके इनके लिए डिफरेंट किस्म के इनको थेरेपीज़ देती हैं, ताकि जहाँ पर बच्चों की बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो उनको डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई किया जा तो सके। इन बच्चों को आप किस तरह अडॉप्ट करती हैं? इसका तरीक़ाकार क्या है और कहाँ से इन बच्चों को आप लेकर आती हैं? बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है हमारा। ये है कि या बच्चा यतीम हो या बच्चा मिस्कीन, या बच्चा यतीम हो या बच्चा मिस्कीन हो और बेसहारा हो। तो ऐसी सूरत में फिर हम इन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और हम वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ भी रजिस्टर्ड हैं बाकायदा तौर पे। तो आपको कितना अर्सा हो गया इस फाउंडेशन को बनाए हुए और आगे इस फाउंडेशन को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी हमें ये काम जो बच्चों का है ये शुरू किए हुए तकरीबन चंद माह गुजरे हैं और इसमें माशाल्लाह हमारे पास 10 बच्चे हो चुके हैं और हम यही करेंगे। हालांकि हमारे इस घर में बच्चों की कैपेसिटी जो है वो 20 के करीब है, लेकिन हम क्योंकि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और एक घर की फीलिंग देना चाहते हैं, इसलिए हमारी यही ख्वाहिश होगी कि इस घर में हम 12 से 14 के दरमियान बच्चे रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, वरना वो हॉस्टल वाली और इस टाइप की फीलिंग आएगी, तवज्जो भी सही नहीं दी तवज्जो भी जाती। नहीं होगी। और हमारे फ्यूचर में ये प्लान्स हैं कि अल्लाह ताला अगर हमें इस्तिताअत दे तो हम इस तरह के मुख्तलिफ घर बनाएं, बच्चियों के लिए, यतीम और मिस्कीन बच्चियों के लिए भी बनाएं, क्योंकि इस घर में सिर्फ बच्चे हैं, मेल बच्चे हैं। तो एक जगह पे मेल और फीमेल बच्चों को रखना मुश्किल काम था, इस वजह से हम लोग अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है यतीम बच्चियों के लिए बनाएंगे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी अगर हमें, तो आप देखें हमारे मुल्क में 40 लाख के करीब ऐसे यतीम और बेसहारा बच्चे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि जितने मैक्सिमम बच्चों को हम लोग उनकी सरपरस्ती कर सकें, उनकी परवरिश कर सकें, अल्लाह ताला हमें मौका दे तो हम उनकी परवरिश ज़रूर करें। तो ये सारा ये कदम आपने अकेले उठाया या आपके साथ किसी ने सपोर्ट भी किया? तो कौन लोग हैं जो आपका साथ देते हैं? जब हमने ये काम शुरू किया था तो हमें लगता था ये बहुत मुश्किल काम है और शायद हम इसको बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे, लेकिन आप यकीन करो ये अल्लाह ताला के काम है। जब आप ये काम शुरू करते हो ना, बस आप नियत करते हो, लोग खुद ब खुद आपके साथ मिलते जाते और हैं। नेक कामों में तो अल्लाह ताला माशाल्लाह बहुत साथ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। और अब माशाल्लाह हमारी एक इतनी बड़ी टीम बन चुकी है, हमारे अपने लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं और हम बहुत आसानी के साथ इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हैं। जो हमने सोचा था बिल्कुल उस तरह से। तो आप माशाल्लाह ख़ुद को भी आपने इतना मैनेज किया हुआ है, काम वर्किंग वूमेन भी है, तो आपके माशाल्लाह ख़ुद की भी बच्चे हैं, तो आप किस तरह मैनेज करती है घर को, फिर इस घर दूसरे घर को भी? माशाल्लाह अब आपके काफ़ी घर हो गए हैं, फ्यूचर में और होंगे, तो आप किस तरह अपने आप को भी मैनेज करती हैं? मैं आपको बताऊं राबिया कि अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत दे देते हैं इस चीज़ के लिए, और यकीन करो
थकन का एहसास ही नहीं होता। और जब आपको एक दिल में खुशी होती है ना, जब आप उन बच्चों को देखते हो, उनसे मिलते हो, जब आप उनको स्माइल करते हुए देखते हो, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करते हो, अब यकीन करो जो सारे दिन की थकन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और अपना ख्याल रखने का मैं आपको ये बताऊं कि जब आप अल्लाह ताला के कामों में पड़ जाते हो ना, तो अल्लाह ताला वैसे ही आपको पुरनूर कर देता है। तो आपका और कौन इस नेक काम में साथ देता है, और आपके शौहर जो हैं वो आपका कितना सपोर्ट करते हैं, और आपके बच्चे कितना करते हैं? आपसे ये गिला नहीं करते कि आप हमसे ज़्यादा उन बच्चों से प्यार करती हैं? मेरे हस्बैंड मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर हस्बैंड की और फैमिली के सपोर्ट के बगैर किसी भी औरत के लिए बाहर निकलना और काम करना बहुत मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मेरे इन लॉज़ भी बहुत अच्छे हैं, और वो सब लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं कभी थक गई हूँ या मुझे कभी उन्होंने कोई गिला किया हो कि मैं उन्हें कम टाइम दे पा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। और मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 4 बच्चे दिए हैं। मेरी 2 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं। और वो सब बच्चे जो हैं मेरे, वो भी उन बच्चों को अपने सगे बहन भाइयों की तरह समझते हैं। जब मेरी बेटियां वहाँ जाती हैं तो वो इनको आप ही बोलते हैं और बिल्कुल बड़ी बहनों वाला प्यार और वो देते हैं। और मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि उन बच्चों को ना सिर्फ माँ और बाप की फ़ीलिंग मिले, बल्कि उन्हें पूरी फैमिली की फ़ीलिंग मिले कि पूरा ख़ानदान उनके साथ है। अब उनको पता है, वो स्कूल जाते हैं, वो बताते हैं कि हमारी बहनें हैं, 2 बड़ी बाजियाँ हैं, हमारी आपियाँ हैं, हमारे भाई हैं, हमसा भाई हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह ही इज़ इन ग्रेड 8, तो उसको वो बड़ा भाई समझते हैं। तो इसी तरह छोटा है बेटा, तो वो सब एक फ़ैमिली, मेरे हस्बैंड को ये बच्चे पापा कहते हैं, तो वो एक पूरी फ़ैमिली की फ़ीलिंग लेके जो है ना, तो वो जाते हैं फिर वहाँ पर। इससे मुझे लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो ऊपर जाता है। देखिए, मेरा ये ख़्याल है कि नेकी का काम आपको कुछ पोशीदा भी रखना चाहिए और कुछ दिखा कर भी करना चाहिए, ताकि पोशीदा रखने से मुराद ये होता है कि बहुत से लोगों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, और दिखा के नेकी करने से मुराद ये है कि और लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है। जैसे आप एक नेक काम कर रहे हैं तो बाकी लोग जो आपको देखते हैं वो उससे मोटिवेट होकर वो भी नेक काम करते हैं, तो ये भी एक सदका जारिया है। तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली मीडिया का बहुत फ़ायदा है। मेरे वालिद साहब तो ये अपनी ज़ात के लिए करते थे, अपने अल्लाह ताला के लिए करते थे। हमने भी ये काम अल्लाह ताला के लिए किया है। लेकिन अगर मीडिया के थ्रू लोगों तक ये बात पहुँचे और बहुत से ऐसे लोग अल्लाह ताला के लिए ये काम करें, तो हमें बहुत खुशी होगी और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे कि हमारी वजह से किसी और को भी अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि वो भी इस रास्ते पे चल पड़ा।